Good morning, children. I am Vinod Mittal from Springfield Public School, and we will continue our exercise 6.2, question number 4. So, picture is given there. Here it is P, Q, R, S, T. PQ parallel to ST given. PQ parallel to ST. Angle PQR that is given 110 degree. PQR, this angle 110 degree. Angle RST, it is given 130 degree. And to find angle QRS. QRS, ये एंगल हमें निकालना है. RST 130 degree already given, and to find this, what we will do the construction in this question. अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि कंस्ट्रक्शन कब करनी है. हमें कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन करनी है? तो आंसर है सिंपल कि आप किसी भी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि उस कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ. नंबर दूसरी बात, वो कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल होनी चाहिए. मैथमेटिकल रूल कैसे? कि आप दो लाइनों के पैरेलल एक लाइन कभी नहीं ड्रॉ करोगे. हमेशा जब भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ करोगे और दूसरी लाइन के पैरेलल प्रूव करोगे. दोनों लाइनों के पैरेलल कभी लाइन कंस्ट्रक्ट नहीं करनी. इसी तरह और भी कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं. जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कर ली कि जो उसको एंगल को भी बाइसेक्ट करे और उसके पैरेलल भी हो जाए. तो इस तरह की उल्टी सीधी कंस्ट्रक्शंस नहीं हम कर सकते. कंस्ट्रक्शंस हमेशा मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग होएगी. नंबर दूसरी बात, उस कंस्ट्रक्शन का हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए. अदरवाइज़ अगर उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ और आप कंस्ट्रक्शन कर बैठे उसमें क्वेश्चन में, तो उसके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं. तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि R से हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे PQ के. तो थ्रू R ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू PQ. कंस्ट्रक्शन through R draw XY parallel to PQ. अब यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, XY parallel to PQ parallel to ST लिख देते हैं. बिल्कुल गलत. दो लाइनों के पैरेलल हमने कभी भी लाइन पैरेलल ड्रॉ नहीं करनी. अगर वो लाइन उसके पैरेलल होएगी तो आपको वो प्रूव करना है बस. सो प्रूफ, तो पहले हम इसको उसके पैरेलल ही प्रूव कर देते हैं. वो कैसे करेंगे? XY पैरेलल टू PQ बाय कंस्ट्रक्शन and PQ parallel to ST given.
Therefore, XY parallel to ST, it implies PQ parallel to XY parallel to ST. जब XY PQ के पैरेलल है और PQ पैरेलल टू ST है, यानी PQ जो है वो XY के भी पैरेलल है और PQ जो है वो ST के भी पैरेलल है, तो ये लाइनें आपस में पैरेलल होंगी क्योंकि ये मैथ्स का रूल है, टू लाइंस पैरेलल टू दी सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हमारा काम ईजी हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल है, दिस प्लस दिस एंगल, suppose this is angle A, this is angle B, 110 plus A equal to 180 co-interior angles, and we can be able to find out the angle A. So after this we will say PQ parallel to, now PQ parallel to XY, Q are transversal, therefore 110 plus angle A equal to 180 co-interior angles, A equal to 180 minus 110, A equal to 70. Similarly, now we will take XY parallel to ST, XY parallel to ST, S are transversal, therefore 130 plus B equal to 180, reason co-interior angles, B equal to 180 minus 130, B equal to 50 degree. A 70 and B 50. Now take this angle as C. Now we can say A plus B plus C equal to 180 angles on a straight line. Now A plus B plus C equal to 180 angles on a straight line. A already 70 degree plus B is 50 degree plus C equal to 180, C equal to 180 minus 120, 50 plus 70 120, take the 120 to the right side, C equal to 60 degree. Therefore angle C means that angle RST equal to 60 degree. Come to the next question, that is question number 5. Very easy question. In figure 6.32, AB parallel to CD, angle APQ 50 degree, angle PRD 127 degree, and find X and Y. So this is the picture AB, this is line CD, this is PQ, PQ, and this is PR,
This angle is 50 degree. This is X. This is 127. This is Y. Find X and Y. So given question number 5, given is AB parallel to CD, angle APQ equal to 50 degree, angle PRD 127 degree. To find X and Y solution. So in the picture you can see that AB is parallel to CD, and if I take PQ as transversal, you will see that X will be equal to 50 degree because of alternate interior angles. So we will start our solution from here in figure. AB parallel to CD, PQ transversal, X equal to 50 degree, alternate interior angles. So this will be 50 degree. X will be 50 degree. Now to find out Y, we have many methods. We can find out this angle by linear pair, then we can apply ASP of triangle. Second thing, we can write X plus Y is equal to 127 exterior angle property of triangle. So 50 plus Y equal to 127, Y equal to 127 minus 50. Third way of finding Y is take AB parallel to CD and PR transversal. So this complete angle will be equal to Y plus 50 because of alternate interior angles. So Y equal to 127 minus 50. So there are 2-3 methods. So easy one is, now write X plus Y is equal to 127 exterior angle property. Also X plus Y equal to 127 exterior angle property of triangle. 50 plus Y equal to 127, Y equal to 127 minus 50, Y equal to 770. So these are the answers for question number 5. Question number 6. Question number 6. There are 2 mirrors given, 2 mirrors, and they are parallel to each other. Now giving mirrors is a technical point, हमने लाइनें नहीं दी यहाँ पर, बल्कि क्या दिए हैं, मिरर्स दिए। अब मिरर देने का कोई रीज़न तो रहा होगा, लाइनें भी दे सकते थे, लाइनें नहीं दे करके मिरर दिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एक फिज़िक्स का रूल भी अप्लाई होगा, इस वजह से यहाँ पर मिरर दिए गए हैं। PQ पैरेलल टू RS,
and this is incident ray AB reflected on PQ, come to RS at C, then reflected in the direction of D. So prove that AB parallel to CD, ये हमें प्रूव करना है। सो गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है मिरर PQ पैरेलल टू RS, और टू प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल टू CD, ये प्रूव करना है। तो इस काम के लिए कि ये इसके पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है, तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये वाला एंगल इसके इक्वल। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल तभी होगा जब ये लाइनें पैरेलल होंगी। ये तो प्रूव करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो ये प्रूव करने के लिए हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, BX and CY we will draw perpendicular. So here it is angle 1, here it is angle 2, here it is angle 3, here it is angle 4. तो 4 एंगल्स हमारे पास बन जाते हैं। कंस्ट्रक्ट BX perpendicular to PQ, CY perpendicular to RS. प्रूफ। अब जो हमारा साइंस का रूल था वो यहाँ काम करेगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, याद है वो रूल? दैट रूल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं मिरर के साथ, तो इंसिडेंट रे बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे बनाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल। और परपेंडिकुलर से उधर और उधर ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ऐसा फिजिक्स में हमें बताया गया। सो इन फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीज़न, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। तो ये रीज़न था, ये मिरर दिए गए हैं। अगर यहाँ पर वो लाइंस दे देते PQ पैरेलल टू RS 2 लाइंस, तब हम ये इन एंगल्स को इक्वल नहीं बता सकते थे। लेकिन मिरर है तो हम साइंस के रूल के अकॉर्डिंग इसको बता सकते हैं। दूसरी बात, BX PQ के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, CY RS के परपेंडिकुलर है, और ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो ये भी पैरेलल होंगी, क्योंकि ये भी मैथ्स का रूल है। लाइंस ड्रॉन टू द पैरेलल लाइंस perpendicular to the parallel lines are parallel to each other because BX perpendicular to PQ, CY perpendicular to RS and PQ parallel to RS
therefore BX पैरेलल टू CY। अब यहाँ चाहो तो आप रीज़न लिख सकते हो, लाइन्स परपेंडिकुलर टू द पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। ये आपने लाइन लिखी दी है तो उससे क्लियर हो जाता है कि बच्चे को थोड़ी इसकी समझ है कि ये लाइन्स पैरेलल क्यों है। अब जब ये BX पैरेलल टू CY हो गया, अब हमारा काम इजी हो गया। ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये हो गई ट्रांसवर्सल, तो ये बन गया एक तरह से Z और ये बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ BX पैरेलल टू CY, BC ट्रांसवर्सल, therefore angle 2 equal to angle 3, alternate इंटीरियर एंगल्स। लेकिन 2 जो है एंगल वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, और 3 जो एंगल है वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। और एट द प्लेस ऑफ 2 वी कैन राइट एंगल 1, एट द प्लेस ऑफ 3 वी कैन राइट एंगल 4, because angle 2 equal to angle 1, angle 3 equal to angle 4, तो ये भी इक्वल होंगे। और जब ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है तो 1 + 2 विल बी इक्वल टू 3 + 4। इट इम्प्लाइज इक्वल्स में जब इक्वल ऐड कर देंगे तो रिजल्ट भी इक्वल ही आएगा। इक्वल्स एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। सो 1 + 2 becomes angle ABC, 1 + 2 becomes angle ABC. So after this step we can write or angle ABC equal to angle 3 + 4, that is BCD. अब जब ये कंप्लीट एंगल इक्वल हो गए, और जब एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। एंगल्स क्या हो जाए? एंगल्स इक्वल हो गई तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। क्योंकि ये हमने बेसिक में किया था कि अगर लाइंस इक्वल होंगी तो एंगल्स जब लाइंस पैरेलल होंगी तो एंगल्स इक्वल होंगे, और जब एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी अगर वो अल्टरनेट या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। बट these are alternate interior angles for the lines AB and CD taking BC transversal, therefore AB parallel to CD। और इस तरह से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।